session. So I'd like to welcome you first of all and welcome all the Dias members today. So today we have a very special guest with us, Mr. Avijit Singh. He's the co-founder and CEO and creative director of As You Wish. And thank you so much for joining us today, sir. Thank you, Divya. Thank you for welcoming me, and thanks a lot for joining this session. And I'm very hopeful कि मैं कुछ insights आप लोगों को दे पाऊँ. So please. Today's interaction basically aims on to provide the students and aspiring digital marketers a brief or an insight about what digital marketing is and how the trends are changing, how they can improve their skills to match the trends which are on demand in market these days. So, and as a seasoned professional, I mean, who would be an expert who would be a good expert except you? So, let's start. So, first of all, I'd like to ask you if you would give us a brief detail about yourself and how you came into digital marketing, because if I'm correct, your background is from fashion, right? Mm-hmm. So basically, my background is I'm a fashioneer. I was and I am since I'm into advertising field now, but still I believe I'm a fashioneer. So basically, designing skill come from that part. So I was running my own brand, my boutique over here in Patna, and then later on I switched to advertising agency. See, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो पहले मेरे आने के पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था उसके पहले बहुत ही अलग सिनेरियो था एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का. They were more in hoardings and physical advertisement, advertisements. But when I entered in this particular field, then I will tell कि पूरा advertising scenario change हो गया. Like now, physical totally converted into digital, and at that point, means I'm talking about I guess 7-8 years back, 9 years back. So I'm on Facebook when Facebook started, and उसके एक साल के बाद मैंने Facebook ज्वाइन किया और मैं आज तक वही Facebook अकाउंट मेरा है, and मैंने Facebook की पूरी जर्नी देखी है कि वो कैसे कैसे उन्होंने इवॉल्व किया है. So उसमें बहुत ज्यादा बूम में नहीं था, but 8 years back डिजिटल मार्केटिंग बूम एंड एडवर्टाइजिंग का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. So I was damn lucky that I entered in this industry at the right time, and now I am here. So far now it is a very good experience, and day by day we are learning a lot, and since the technology is unfolding day by day, तो बहुत अच्छा हो जा रहा है. Future यही है. So true, sir. So that's actually quite fascinating कि आपने Facebook की जर्नी पूरी देखी है. Moving on, for our listeners who are just starting out and who are just exploring what digital marketing is as a career, what advice would you give to them who are looking to build a career in this field? See, first of all, you must be tech savvy. आपको टेक्नोलॉजी से प्यार होना चाहिए. टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि आप जितने भी प्लेटफॉर्म है, सी क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग इज नाउ नो मोर ऑल अबाउट मेटा. इट इज a degree preface now. So if you talk about Meta, तो आपको Facebook, Instagram और WhatsApp नजर आता है. Other than that, you have lots of options in different things. See, Quora बहुत अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी. बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में Quora को बहुत ज्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बट वो बहुत है. LinkedIn अपने आप को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है पिछले 4 साल में, तो बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को चेंज किया जब से मेटा अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया. तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा पर्सपेक्टिव है ना, वो होल एंड सोल अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले टेक सेवी होना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए. वो प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश्ड है, वो प्लेटफॉर्म जो न्यूली लॉन्च हुआ है, जो आने वाले समय में जो फ्यूचर है. सी, अगर आप आज ये सोचते हैं कि आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग अगर मार्केटर बनना है तो मैं आज मेटा पे अच्छा कर लेता हूँ तो आई एम अ गुड मार्केटर. नो, यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ द फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. जैसे फॉर ट्विटर ने अपने पूरे ये भी चेंज किया है तरीके से, मॉडल भी पूरा चेंज कर दिया उन्होंने. बट हो सकता है कि
कल को ट्विटर को ही बीट करने के लिए एक नई कंपनी आए विथ न्यू, उसमें कुछ नया चीज ऐड ऑन हो, सो यू शुड हैव एन आई ऑन ऑल दोस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हो रहे हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं। तो ये सब सारा आपके लिए बहुत बड़ा एड ऑन्स होता है। सो यू मस्ट सेवी एंड यू मस्ट हैव इंटरनेट पे कीड़ा होना चाहिए, सीधा सा। So yeah, that's actually so true because हर 2-3 साल पे कुछ ना कुछ नए features आ जाते हैं. Like earlier in our days there was no Snapchat. Now there's Snapchat पे advertising भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है. TikTok आके चला गया. So every 2-3 years I think the platform entirely changes. So that's a really good. That reminds once again, TikTok के बंद होने के बाद में Instagram ने स्टोरी लॉन्च की। Exactly, yeah. तो नाउ यू कैन सी एक प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म उस फीचर को अपने में इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं। सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ टिकटॉक की नॉलेज, जिसको नहीं होगी स्टोरी उसके लिए बहुत नया लगेगा, लेकिन जो टिकटॉक जान रहा होगा उसके लिए स्टोरी बहुत नोन फीचर होगा। सो वही चीज मेरी कहने का मतलब था कि आपको ना नए टेक्नोलॉजी को और नए प्लेटफॉर्म पे हमेशा यू शुड हैव एन आई। Yeah, that's it. So let's dive a little deeper into the specific areas. As like you are from a creative field, you have done your graduation in fashion. So can you talk about the role of creativity in digital marketing and how it's important to balance creativity and data-driven strategies? Creativity and digital marketing goes parallelly. If you do not have the knowledge of creativity, you might lack. I'm using the word might. You might lack in the field of digital marketing, but yes, if you are creative, you have a good sense of designing, you have a good sense of creativity, then it will be a big add-on to your digital marketing profile. So yes, if you want to be a digital marketer, you must go for a small course जिसमें डिजाइन की पढ़ाई होती हो, जिसमें क्रिएटिविटी की पढ़ाई होती हो। क्रिएटिविटी की भी पढ़ाई नहीं होती है बेसिकली, वो जब आप डिजाइन पढ़ते हैं ना तो उससे आपका क्रिएटिविटी एनहांस होता है। जब आप प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स पढ़ते हैं, डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी टेंटिकल्स ना एनहांस होते हैं और उससे आप क्रिएटिव बनते हैं। सो अगर सपोज कीजिए, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज इफ यू आर डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट का अगर आप पोस्ट बनाते हैं और अगर वो पोस्ट अट्रैक्टिव नहीं होता है और आपने अपनी पूरी डिजिटल मार्केटिंग स्किल उसमें लगा दी है, तो वो वो पोस्ट या वो एड आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर उसके ऊपर क्लिक करने का टेंडेंसी तभी आता है जब वो क्रिएटिव बहुत अच्छा सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है, किस रेस्टोरेंट का है, तो वो जब सबसे पहले तो वही होता है, सी इट इज ऑल अबाउट कि जब आप खाना रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले प्लेट को डेकोरेट करके आता है कि आपका अंदर एपेटाइट मिल जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है। सो आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको डिजाइन समझ में आना चाहिए, आपको बैलेंस डिजाइन के सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, तब उसके बाद वो आपको एक बहुत बड़ा एड ऑन करेगा। जो आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को आप उसमें इनपुट करेंगे, उससे आपका 10 टाइम्स आपका ये हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। सो इट इज यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड गो फॉर अ स्मॉल कोर्स ऑफ डिजाइनिंग। And what do you think how one should balance this creativity and data? Like, because digital marketing, like any marketing, is a data driven strategy. क्योंकि अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो फिर हम मार्केट करेंगे किस? Yes. So what advice would you give on data? See, I'm telling you, data is an important part, but nowadays you will see it is more about goal than data. Yeah. See, मेटा जब अपने आप को रेवोल्यूशनाइज किया तो उसने क्या किया, आपको डेटा से ज्यादा तो आपका जो गोल है। सी, जैसे अगर मेटा में अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारा एडसेट्स गोल्स होता है, ठीक है। सी, डेटा आपको क्यों चाहिए होता है, आपको अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर करना चाहते हैं, आप उतने सारे लोग चाहते हैं जो आपके ब्रांड के बारे में नहीं जानते, तो उसमें अगर मेटा से ऐड चलाते हैं तो वहां पहुंचते हैं आप। सो अगर मेटा में देखेंगे तो उसमें डिफरेंट गोल्स होता है, ठीक है। तो वो गोल्स अगर आपको बहुत क्लैरिटी होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका रिजल्ट आउटपुट मिल जाएगा।
नाउ डेटा वहां काम आता है जहां पे आप डायरेक्ट 1 to 1 जाके इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको डेटा बहुत जरूरत है. नाउ डेटा कलेक्शन इज अगेन अ वेरी बिग एरिया ऑफ प्रोफेशन बेसिकली, जो डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है. सो बट बेसिकली डिजिटल मार्केटर डेटा कलेक्टर कभी नहीं हो सकता है. वो होता है, वो एक पार्ट होता है, बट यू इफ यू आर अ गुड डिजिटल मार्केटर देन यू मस्ट नॉट से कि मुझे डेटा चाहिए तो मैं करता. So data is a part, but that is a totally different approach. Okay. Well said. So, moving on, for our students who are interested in digital marketing, what skills do you think कि essential हैं इस field में succeed करने के लिए, आगे तक जाने के लिए, apart from like tech savvy, being a tech savvy and loving the internet, and obviously having some sort of creativity, what else could they work on? See, first of all, you should be in the trend. Means आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है. अभी का ट्रेंड ऐसा है कि आप रात में you must have seen that series पंचायत. Yes, yes. हिंद का सितारा कभी बहुत पॉपुलर हो रखा है. तो आप रात को हिंद का सितारा वाला रील्स देखकर सोएंगे और सुबह पता चला कि वो कोई दूसरा सॉन्ग ट्रेंड में आ गया. तो सबसे पहले यू शुड हैव एन आई ऑन द ट्रेंड. ये आपको बहुत जरूरी है कि आप ट्रेंड को पकड़ें. I'm just talking about a song, but trend can be anything. Trend can be ad also, ad sets also, type of ad sets. जैसे for example मैं बताता हूँ आपको, आप लोग इस चीज को नोटिस करेंगे. एक समय था जब वीडियो एड्स बहुत चलता था. कैरोसेल का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया. उसके पहले सिंगल इमेज का बहुत ट्रेंड था. यस, मेटा भी अपने आप को चेंज करता गया है, लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा एड का खेल हो रहा है. वो हो रहा है लीड पे. मीन्स आपको लीड जनरेट करके आप डेटा कलेक्ट करके और तब उसको आप अपने क्लाइंट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? So the question was ki what skills do you think are essential for any student starting? Yes. So as a student you need to have the knowledge of trend कि हाँ कहाँ कौन सा ट्रेंड क्या चल रहा है. अगर आप उसके साथ चल रहे हैं तो if you are updated तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. दूसरा, आपके पास जो भी नॉलेज हो वो डेप्थ नॉलेज हो. शैलो नॉलेज के साथ में आप कभी भी नहीं आइएगा. बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. ठीक है. मीन्स आप अगर ये सोचते हैं कि ठीक है मैं बहुत बड़ा कोर्स मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं छोटे से कोर्स में ही अपने आप को मैं एस्टैब्लिश पहले करना चाहता हूँ, नेटा का ही कोर्स कर लीजिए. आप लिंक्डइन का ही पर्टिकुलर एक्सपर्ट बनिए. मीन्स आप अपनी फील्ड को एक्सपर्टीज बनाइए और धीरे धीरे करके आप अपने एरिया को बढ़ाइए और अपने स्कोप को बढ़ाइए. सो दैट इज माय सजेशन. और बाकी ट्रेंड के साथ तो आप रहिए. रील्स कम देखिए, ट्रेंड से ज्यादा लाइक रील्स देखिए लेकिन उसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए. यस, ऑफ कोर्स. इंसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इंसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी भी ब्रांड को अगर आप लीड करते हैं तो उसके इंसाइट्स को पढ़िए, चाहे उसकी डिजिटल स्टोरी हो चाहे उसकी फिजिकल स्टोरी हो. सी, कई बार क्या होता है ना, डिजिटल एज अ डिजिटल मार्केटर बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं. बट आपको ना ब्रांड की आइडेंटिटी पहले से जानकारी होनी चाहिए कि हाँ मैं किस ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और उसकी क्या हिस्ट्री रही है, किसने पिवोट किया है, किसने बहुत सारी लॉन्ग जर्नी है, कौन न्यू कमर है मार्केट में, कौन राइवलरी है उस पर्टिकुलर ब्रांड का जिसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं. तो ये सब सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. So moving on to the next question. So what are the most significant changes जो आपने इन कुछ सालों में देखे हो in digital marketing as a whole, like not for a particular platform but as a whole? See, अगर changes की बात करूँ तो it's going day by day. Means every day you will see a different horizon of like digital marketing. मीन्स मैं इसको डिफाइन कर पाना ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देयर आर इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आप देखेंगे जो चेंज होता जा रहा है. और वही मैंने सबसे पहले बोला कि आपको टेक सेवी होना पड़ेगा. टेक सेवी का मतलब कि आपको फीचर्स क्या क्या ऐड ऑन हो रहे हैं. मीन्स विद इन अ वीक अगर आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे ना तो हर दिन उसमें एक नया अपडेट आ रहा है. हर दिन. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग बट लेटेस्ट अपडेट अभी परसों एक उसमें आया है इंस्टाग्राम पे. यस,
लास्ट सीन, यू हैव सीन द लास्ट रील, वो अगर आप रील पे जाते हैं ना तो आप देखिएगा कि वहां पे छोटा सा लिखता है यू हैव सीन दिस, वहां पे वर्ड यूज कर रहे हो तो रिसेंटली सीन, अच्छा, या सीन इस अपडेट है। तो अब क्या है, जब आप रील कोई देखा, आपने रील देखा, रील के बाद आप उस प्रोफाइल पे जाते हैं और उसके रील सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर जिस जिस वीडियो से आप गए हैं ना उसको वहां पे लिखा हुआ मेंशन करता हुआ रहता है रिसेंटली सीन। सो ये एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। तो इस तरीके से डे बाय डे देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो लॉन्चिंग। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो शायद आपको नहीं पता होगा। चैट जीपीटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। चैट जीपीटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। सो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको उस तरीके के वो टेक्नोलॉजी को भी समझना होगा, जानने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कंटेंट राइटर पे डिपेंडेंसी आपकी होती है। अब कंटेंट राइटर अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि जब आप अपने करते हैं ना तो आपके पास मल्टीपल लोग नहीं होते हैं, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला सिचुएशन होता है उस वक्त। सो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको चैट जीपीटी चलाना भी आना चाहिए कि हाँ इन वर्स्ट केस अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए कैप्शन अगर लिखना है तो चैट जीपीटी का यूज करो। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे स्टार मार्क के साथ ऐड करना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी का लैंग्वेज को या उसके टेक्स्ट को आप हूबहू यूज नहीं कीजिएगा, वो बहुत हार्मफुल होता है वो। सो वही बात है कि आपको इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ध्यान देना होगा, आने वाले ट्रेंड पे ध्यान। So basically, for digital marketing, you need to be the jack of all trades. Yes, of course. Especially when you are beginner. See, जब आप ग्रो कर जाएंगे ना तो आपके पास आपका कंटेंट राइटर खुद का होगा, डिजाइनर एक्सपर्ट है डिजाइन करने में, तो आपको बहुत, बट यस यू शुड हैव द सेंस ऑफ नॉलेज, यू शुड हैव द सेंस ऑफ कंटेंट कि हाँ जो कंटेंट राइटर ने लिखा है वो हिट करेगा या नहीं करेगा, वो तभी आएगा जब आपको पता हो। Right. So with these changes in mind, जब भी आप किसी नए ब्रांड के लिए कुछ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होते हो तो फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट यू फोकस ऑन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द ब्रांड हिस्ट्री और ब्रांड का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा है बुरा हो, बुरा है दैट डजंट मैटर, शायद बुरा होता है तभी लोग आपके पास आते हैं, अच्छे होते हैं तो आपको डिजिटल मतलब मार्केटिंग ठीक है। नंबर 1 ब्रांड हिस्ट्री क्या रहा है, नंबर 2 उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। कई बार प्रॉब्लम ऐसा होता है कि पुराने कुकर्मों का नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो पिछले वाले डिजिटल मार्केटर ने बहुत गलतियां कर रखी होती हैं, या उस पर्टिकुलर बिजनेस का रिव्यू बहुत खराब आ रखा होता है। सी बिजनेस डाउन क्यों होता है या बिजनेस किसी को कम क्यों आता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, नहीं तो आपकी सर्विस में प्रॉब्लम है, यही दो चीज हो सकता है। अब इन दोनों चीजों का आपको रिकॉर्ड पहले जाके देखना होगा। अब आपका एक मन में एक सवाल आएगा कि सर बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हम जाके प्रोडक्ट थोड़ी चेंज कर सकते हैं कि आप अच्छा हो जाएगा। इट विल बी योर सजेशन सर, हमने पास्ट आपका हिस्ट्री जब हमने पढ़ा तो उसमें हमें ये पाएगा, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट मीटिंग करते हैं ना तो हम लोग पहले सारा ब्रांड स्टडी करके जाते हैं, हम बताते हैं कि यहाँ ये प्रॉस है आपका, ये कॉन्स है आपका। अब आप अपने प्रॉस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इतना ज्यादा कि कॉन्स छुप जाए, या कॉन्स को अपने आप खत्म कर लीजिए। तो अब आप जब सजेस्ट करते हैं ना तो वो एक आई ओपनर की तरह काम करता है बिजनेस ओनर। तो वो बोलता है कि हाँ तो हो सकता है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर लें या वीक पॉइंट को ही खत्म कर लें। तो वो धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगता है, और तब उसके हिसाब से जब आप एज ए डिजिटल मार्केटर उनके लिए आप सर्व करने लगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आने लगे। सो पहला ब्रांड हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। दूसरा, आप एक छोटा सा रिसर्च कीजिए उस ब्रांड के बारे में कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो उनसे कितने दूर पे हैं। तो किसी लोकल बिजनेसेस अब बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, और उनको जैसे क्या है, क्लोथिंग स्टोर है, सपोज बोरिंग रोड पकड़े, बोरिंग रोड में एक क्लोथिंग स्टोर है, वो क्लोथिंग स्टोर चाहेगा कि उसके पास बहुत सारा वॉकर्स है। अब वो सेम कैटेगरी में अगर उसके बगल में कोई शॉप है तो शायद उसके पास भी हो जाएगा। तो आपको उसकी ब्रांड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, अगर हम इसके लिए काम कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर एक्स ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो शायद वाई वाला ब्रांड ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए इससे। तो और या वाई अच्छा कर रहा है तो वाई क्या कर रहा है ऐसा जो एक्स नहीं कर रहा है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आपको करना होगा।
आपको मार्केट एनालिसिस करना होगा और तब ब्रांड इंस्टीट्यूट करना होगा। ये सब सारी चीजें तो साथ में आपको करनी चाहिए। So, and that those are some insightful answers. So now, moving on to the last few questions. After that, हम audience पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग enthusiasts हैं जिनको करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में. So, what do you think is the biggest challenge that digital marketers are facing today, and how can they overcome them? Payment. The most biggest challenge for digital marketing is the payment. Means अगर आप सही जगह पे नहीं हैं, सही जगह इन सेंस की लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, तो प्रॉब्लम है, चैलेंज है आपके लिए. सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स एंड एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस टू पिक एंड चूज. इन स्मॉल टाउन लाइक बिहार ना अगर देखें तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं और उनमें से आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है कौन आपके लिए है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है. तो यस, पेमेंट इज द बिगेस्ट इशू. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर, बट समवेयर कहीं ज्यादा कहीं कम होता है. नंबर 2, ट्रस्ट. ट्रस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि या तो आपके पहले जो डिजिटल मार्केटिंग करके गया है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए उसने काम खराब करके गया है. मुझे आज तक एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिला जो बोला कि मेरे पहले वाले था ना वो बहुत अच्छा, अगर वो अच्छा कर रहा था तो मेरी जरूरत क्यों है फिर. करेक्ट, ठीक है. तो एक तो ये, क्योंकि सी बता रहा हूँ क्या, आज से 7 साल पहले जब डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा बूम जब आया था ना, एवरीबॉडी स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. जो फेसबुक पे एक्टिव थे, कुछ नहीं आता था, वो भी डिजिटल मार्केटिंग करने लग गए थे. और वो एक ऐसा सिनेरियो, एक बबल क्रिएट किया जिसमें कि एवरीबॉडी बिकेम द डिजिटल मार्केटर, खासकर तब जब कोविड आया. कोविड में सारी इवेंट कंपनी बन गई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में. एवरीवन स्टार्टेड राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी. बट सवाल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए उसका. तो उन्होंने जो गलतियां की, मार्केट में लोगों का टेस्ट इकट्ठा हो गया. अब हम हमें ये डील क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं हमको डिजिटल मार्केटिंग में भरोसा नहीं करते हैं, पिछले वाला तो इतना पैसा लेके चला गया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी ब्रांड विजिबिलिटी 0. तो उस चीज को, ट्रस्ट को जीतने में बहुत चैलेंज फेस होता है, और ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा चाहे आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी जाएंगे ना, आपको ये, क्योंकि अभी भी 100% एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सारे लोगों की, ठीक है. और जो एक्सेप्टेबल है इस चीज को करने के लिए वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं एक लगेज ब्रांड के लिए भी बहुत हाल फिलहाल में वो ऑनबोर्ड हुए हैं क्लाइंट. तो फादर और सन दोनों बिजनेस चलाते हैं, ठीक है. तो सन तो टेक्नोलॉजी समझते हैं, सब कुछ होता है, वो आता है. फादर को समझाना पड़ता है हर चीज, ठीक है. क्या है वही मार्केट. अच्छा, फादर को भी ये चीज समझ में आ गई है कि भाई यही एक है जो एडवर्टाइजिंग का एक जरिया रहा है. नहीं तो पहले तो होल्डिंग लगा दिया और पैम्पलेट स्क्रोल कर दिया. तो अब क्या हो गया कि एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है. लेकिन वो स्टिल अभी भी थोड़ा चैलेंज है, आने वाले समय में वो दूर हो जाएगा. इसका एक ही सॉल्यूशन है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मार्केट में रहिए टिक के, आपको कुछ न कुछ बेसिकली ट्रस्ट बनाते रहिए, अपना पोर्टफोलियो बनाते रहिए, सो दैट कभी कभी आपको फ्री में भी काम करना पड़ सकता है. आई मस्ट टेल यू, बट यस, नेवर मेक द हैबिट ऑफ डूइंग वर्क इन फ्री ऑफ कॉस्ट. बट यस, कभी कभी प्रूफ करने के लिए आपको करना. So, like you already gave a case study example, but I would like to ask you for one more case study example if you can give, जो कि आपने जिस पे काम किया हो, जिनकी maybe from the scratch or maybe जिनकी already digital marketing हो रखी थी. If you could give us an example of that. See, I'm telling you what. एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है. एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग विद गुड मार्केटिंग एजेंसी. ये फैक्ट है इस बात. एक एजेंसी तो पूरे मार्केट का कैटर नहीं कर सकता है. जो एजेंसी बहुत एक्चुअली एजेंसी जो करती है. तो ये बात
मतलब ऑलमोस्ट ये सारे सिनेरियो मिले। चलिए मैं मतलब आप एक केस स्टडी की बात कर रही हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट का बात कर रहा हूँ कि एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉर कि यार कोई अच्छी एजेंसी मिल जाए जो काम हो जाए। मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं जहां जहां हमने अप्रोच किया है, आई एम टेलिंग यू वन, वी वर्क फॉर वन ऑफ दी स्कूल, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, 5 years बैक। Okay. तो उस तक ना स्कूल्स जनरली डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया करते थे। Correct. और स्कूल्स का था एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कि वो अपना न्यूज़पेपर ऐड करते हैं और वो करते हैं। This school approached us and we had the meeting और हम लोगों ने उनको बताया। उनका अगेन वहां पे फादर सन वाला है, वहां भी सीन मीन्स वहां पर है सन अंडरस्टैंड्स दी कॉल ऑफ नीड ऑफ द आवर कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग के बिना काम नहीं होने वाला है। फादर बोलते हैं कि इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, दिखता ही नहीं है कुछ, हमको तो आज तक नहीं दिखा है कभी भी। तो ये चैलेंज निकल करके आता है। The son decided कि नहीं हम लोग करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव, प्री कोविड मतलब 4 साल 5 साल पहले, हम कोविड के पहले की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बजट के साथ में वो डिजिटल मार्केटिंग अपना चालू किया करना। उनको और ये मान के चल रहे थे कि 1 साल तक उनको कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, ना ही एडमिशन मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। वो बोलते थे कि नहीं बस हमें डिजिटल आना है, डिजिटल करना है। We just want to show our presence. यू वोंट बिलीव, जब कोविड आया स्कूल्स वी आर लुकिंग फॉर कि यार कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम लोग का हैंडल कर ले, क्योंकि हम लोग को नोटिस सर्कुलेट करना है, हम लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों की एक्टिविटी दिखानी है, कैसे दिखेगा। दैट टाइम दैट स्कूल बूम्ड एंड वो इट एस्टैब्लिश्ड है। Okay. सो अच्छा, अब अच्छी बात ये होती है ना कि वो हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं, क्योंकि जैसे सपोज मैंने अभी 3 एग्जांपल दिया था कि पहले ना सिंगल इमेज ऐड चलता था, एक वीडियो ऐड आया, फिर करजल ऐड आया, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हालांकि करजल ऐड पहले आया, वीडियो ऐड बाद में आया, ट्रेंड थोड़ा अभी करजल ऐड का ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वीडियो ऐड की विजिबिलिटी कहीं कहीं कम हो जाती है। मींस देयर आर 23 डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर वीडियो ऐड चलता है, 27, तो उसमें से वीडियो कहीं वीडियो कहीं कहीं नहीं चलता है, बाकी नॉर्मल वाला जो है कैरेजल और सिंगल पोस्ट वो 27 चलता है, 27 दिखता है। तो कैरेजल ऐड क्या था, हम लोगों ने उनके लिए ऑलरेडी सिंगल इमेज ऐड चला चुके थे, वो मार्केट में दिख रहा था, कैरेजल ऐड चल रहा था। अब जाके जब कैरेजल ऐड चला रहे थे तब उनका वीडियो ऐड स्टार्ट किए करना। अब नाउ एवरीवन इज डूइंग द वीडियो ऐड, सो नाउ वी आर लुकिंग द न्यू पर्सपेक्टिव फॉर दैट स्कूल। ये फायदा है हुआ उनको कि वो समय से पहले जब उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग चालू की तो नाउ दे आर वे फॉरवर्ड। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स स्कूल के नहीं स्टार्ट किए थे जब उन्होंने स्टार्ट। Okay. So now I would like Deans to questions if you have from sir, because we have a lot of enthusiasts who are like digital marketing के बारे में जानना है, क्या होता है, कैसे होता है। आई होप सो मैंने सबके आंसर दिए हो जो मन में उनके हो, बट स्टिल जो है पूछना वो देखना। 13 लोगों ने किया, 2 लोगों ने। So anybody who would like to start can raise their hand. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। Santoshi, yeah, Santoshi, can you just unmute yourself and ask the question? Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, Santoshi. hello, ma'am. सर आपने डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह आपने ऐसे बताए हैं, तो इसमें कुछ वीक पॉइंट भी है क्या, कुछ इसमें नेगेटिव वगैरह? क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है, पेमेंट हो या शॉपिंग हो, आजकल सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। मार्केटिंग आप डिजिटल की हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ वीक पॉइंट या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसा कुछ है क्या सर? सी आपके क्वेश्चन से ना मैं एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि जब डिजिटल मार्केटिंग इतना ही अच्छा है तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों रह गया, क्यों नहीं रह जाता है, बाकी सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऐड देखा या कोई पर्टिकुलर पोस्ट देखा, किसी ब्रांड के बारे में देखा, वो आया दिखा और गया, ठीक है, आपने उसको सेव किया अपने फोन में, ठीक है, यस सर। ऐप में गया या आपकी गैलरी में गया,
अगर आपने इमेज सेव किया तो गैलरी में गया। बट अब कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने ऐप में जा करके सेव्ड आइटम देखते हैं, रेयरली या वंस इन अ ब्लू मून, जब आपको उसको लगे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ देखा था ना, मुझे जरूरत है। ठीक, बट एज ए डिजिटल मार्केटर मैं सेव करके रखता हूँ क्योंकि रेफरेंस के लिए वो काम आता है बहुत। कई बार आप कॉम्पिटिटर्स का एड्स या पोस्ट देखते हैं तो वो आपको समझ में आता है। तो बट इससे क्या डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, क्या ड्रॉबैक है, वो आया दिखा गया। लेकिन जब अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं ना, वो आपके टेबल पे पूरे दिन पड़ा रहता है और आप जब मर्जी से आप देख सकते हैं। Santoshi, can you unmute yourself? I'm asking Santoshi to just mute क्योंकि ट्रैफिक से बस काफी ज्यादा आ रही है। ओके, Yes, sorry, bro, please continue. सो एक तो जो विजिबिलिटी है ना, वो लिमिट हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में कभी कभी, जब आप अपनी मर्जी से नहीं देख सकते कोई चीज। न्यूज़पेपर में अगर आप देख रहे हैं कोई कंटेंट तो आपको दिखेगा, होर्डिंग्स आपको दिखेगा हमेशा थ्रू आउट, बट उसमें नहीं दिखता है। एक मुझे यही लगता है, बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ, हाँ यस डेटा, बट डेटा इज नाउ नो मोर चैलेंज। एवरीबडी हैव डेटा इन देयर फोन, मींस आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, आपको उस ऐप को यूज करने के लिए आपको डेटा चाहिए होता है ढेर सारा। रील्स देखने का आदत हो गया तो रील्स देखने के लिए भी आपको डेटा चाहिए बहुत सारा। बट नाउ डेटा इज नॉट अ चैलेंज। यस, इट वाज अ चैलेंज 4-5 years बैक, सिंस जब जियो नहीं आया था, बट जियो के आने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व। सो एक ये है। Okay, sir. My next question is अपने एज ए कंटेंट राइटर अपने कंटेंट को इंगेजिंग कैसे बनाएं, उसे कुछ आइडिया, कुछ टिप्स। सी, इसको बहुत छोटे से आंसर में डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं एक नटशेल में आपको बताता हूँ। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स का ना ध्यान रखना होगा। नंबर 1, कॉल टू एक्शन आपको बहुत अच्छा लिखना आना चाहिए। कहीं भी क्या होता है, बहुत सारा पोस्ट या बहुत सारा एड जो होता है वो इसलिए नहीं परफॉर्म करता है क्योंकि आप कॉल टू एक्शन और कंटेंट कैप्शंस अच्छा नहीं लिखते हैं। सो यस, फर्स्ट यू नीड टू हैव अ गुड कॉल टू एक्शन। मीन्स अगर आप किसी पार्टिकुलर शॉप के लिए कर रहे हैं तो शॉप नाउ होना चाहिए, लीड जनरेट के लिए कर रहे हैं तो कॉल नाउ होना चाहिए। तो एक तो वो आपका कॉल टू एक्शन इज मस्ट। सेकंड, अट्रैक्टिव कैप्शन शुड बी देयर। आप जितना अच्छा कैप्शन लिखेंगे ना, सी, एक होता है ना फैंटेसाइज कर देना, एक होता है रियलिस्टिक ह्यूमन टच के साथ में। बहुत एक समय था, आज से 3 साल पहले तक बहुत फैंटेसाइज किया जाता था, बट नाउ ह्यूमन टच इज मोर इम्पोर्टेंट। मींस आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट कीजिए अपने आप को, वो ऐसा कंटेंट आप उसमें डालिए जो लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाए आपसे, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। उससे आपका ट्रैफिक हाई होता है और लोग आपके बारे में, आपके ब्रांड पोस्ट कंटेंट को पढ़ना पसंद करते हैं। थर्ड, देयर शुड बी स्टोरी टेलिंग इन एवरी कंटेंट। मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया, आपको अपनी कहानी बतानी है। चाहे आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो आप सर्विस बेच रहे हो, चाहे वो आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ भी, देयर शुड बी अ गुड स्टोरी नरेशन इन अ शॉर्ट नोट ओनली, बट होना चाहिए। ओके सर, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, जब हम प्रोफेशनली डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो क्या जरूरी है ना हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल मोबाइल नंबर दोनों अलग अलग होना चाहिए? Yes, it is very important क्योंकि see, it is not about being a digital marketer only. आप किसी भी प्रोफेशन में भी रहें तो आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर को अलग रखना ही चाहिए। उससे ये फायदा होता है कि डिजिटल मार्केटर का नींद बहुत हराम होता है, ये भी बात आप जान जाइए। रात को 12 बजे 1 बजे क्लाइंट आपको अप्रोच करेंगे, आपने अगर उनको उनकी कोलेक्टरल्स या उनके डिजाइन या उनके काम को अगर आपने डिलीवर नहीं किया समय पे, तो रात को भी नॉक करेंगे, मेरे पास ये नहीं आया या ये रिपोर्ट नहीं आई। तो आप एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहेगा, आप अपना पर्सनल प्रोफेशनल दोनों नंबर को अलग रखिए। आई गेस I think we have one more. Muskan is here. So Muskan, you can unmute yourself and ask. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान। सो सर, जैसे अभी आपने ट्रेंड के बारे में बताया ना कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि करेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है एज अ डिजिटल मार्केटर। यस तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आजकल लोग ट्रेंड को भी बीट करना चाह रहे हैं। मतलब करेंटली जैसे कि अभी अपने पंचायत का एग्जाम्पल लियो, टेक द एग्जाम्पल पंचायत मूवी, एंड आई रिमेम्बर बिफोर पंचायत 12th पास की बात हो रही थी, एंड सडनली जो पंचायत मूवी जो ट्रेंड करी, उससे पहले 12th पास मूवी ट्रेंड कर रही थी।
एंड करेंटली पंचायत ने 12th पास को बीट कर दिया. सो यहाँ देखा कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है. हर कोई ट्रेंड बीट करके अपना अलग ट्रेंड सेट करना चाहता है. तो उस चीज से कैसे डील करें, यानी हम करंट ट्रेंड को कैसे बीट कर सकते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ टिप्स चाहिए. सी करेंट ट्रेंड को बीट क्यों करना है? एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ट्रेंड के साथ चलना है. आपको आप बीट करने का मतलब, आप थोड़ा अपने क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए. बीट करने का क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है कि मतलब मुझे जैसे कि अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा हटके हम करना चाहें कि नहीं, जो साथ में ट्रेंड आ जाए और हम जो हटके करें वो ही ट्रेंडिंग आ जाए. तो So trend चल रहा basically कोई ये कहना चाह रही है कि शायद हम नया ट्रेंड कैसे है. हाँ, ट्रेंड. ट्रेंड सेट करना सी मैं आपको बताता हूँ. अभी तक हालांकि बहुत ज्यादा इस पे डेप्थ स्टडी नहीं हुई है, बट जिस तरीके से फैशन में ट्रेंड फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट समझती है ना? वेदर फोरकास्ट होता है कल के मौसम का पूर्वानुमान या अगले महीने का. तो Yes. बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो काम कर रहे हैं, जो आने वाले ट्रेंड पे. सी एडवर्टाइजिंग में तो है, कलर्स का फोरकास्ट होता है एडवर्टाइजमेंट में, या फैशन में होता है. इसमें ट्रेंड फोरकास्ट अभी तक तो नहीं आया है, बट एक तरीका ये हो सकता है कि यू शुड हैव एन आई ऑन दी कमिंग एलिमेंट्स. कुछ भी हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको ये रेगुलरली देखते रहना होगा और उसकी पॉपुलरिटी आपको देखते रहनी होगी. मीन्स जैसे गूगल ट्रेंड जो होता है ना, न्यूज का एक ट्रेंड बताता है कि आज का क्या न्यूज होने वाला है. अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना टुडेज न्यूज ट्रेंड, तो आज का हाईलाइट में बताता है कि ज्यादा लोग क्या पढ़ रहे हैं. उसी तरीके से आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर के ना इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तब उससे आप कुछ हद तक कर सकते हैं. वो भी प्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज ये बात जान जाइए, अब कौन जानता था कि बदोबदी सॉन्ग ट्रेंड करने लगेगा. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि कुछ भी हो सकता है. सो फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है अभी, बट यस यू कैन ट्रेस आउट द लाइन कि आपको उस ट्रैक पे, उस लाइन पे रहना है. Okay, thank you, sir. वेलकम. Okay, so next we have Sumaya. Sumaya, you can go ahead. Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग. My question is that how graphic designing is another level with UI and UX design. मैं इनका क्वेश्चन में सुन नहीं पाया, प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए. मैं ये बोल रही हूँ ना, जैसे ग्राफिक डिजाइन मतलब डिफरेंट कैसे यूआई और यूएक्स डिजाइन. सॉरी, क्या आप समझ रही हैं? Yeah, sir. Basically, she is actually asking graphic design, UI, UX से different कैसे. So if you would like, I can teach. Yes, please ask, ma'am. I mean, I would like your review as well, because I mean, I am also your yes. student. So yeah, so Sumaya, basically graphic designing is what, you know, a creative जो जाते हैं किसी भी पेज से, like suppose हमारे डाइस का ही जो creative जाता है, that's core graphic designing. Okay, and when we talk about UX का full form पता है क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस. Yeah. So basically, user का experience. And I will give a really simple example. Induction cooker होगा घर पे. हाँ. So how many buttons do you use on that? actually I don't understand. बस एक ही यूज करते हो, एक से दो यूज करते हो. So user experience is basically, you know, जो भी कोई यूज कर रहा है, be it a product or be it a website, उसके एक्सपीरियंस को और एनहांस करना, उसको एक बेटर एक्सपीरियंस देना. That's what UX is, user experience is. And user interface, I think, sir, you would do a better explanation in that. नहीं, user interface is see, user interface is what you see, Yeah, on that web page. तो UI हो गया front and UX हो गया उसका back. so how you reach there is UX, and Yes, so that's the UX. what attracts you is UI. Yes, so and basically see, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, उसका एक पार्ट है यूआई. ग्राफिक डिजाइनर एक होल पर्सपेक्टिव हो गया, और उसमें से यूआई पार्ट हो गया. जो यूआई एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाने में एक्सपर्ट होते हैं.
मतलब उनकी एक अलग एक्सपर्टीज है। यूएक्स जो हुआ, यूएक्स वेयर लोग ना वो कोड वाले भी होते हैं, ठीक है, तो हार्डकोर कोड वाले भी एक अलग हो गए, उसमें से स्पेशलाइज एक यूएक्स वाले हो गए। तो उसी तरीके से वो एक ना ब्रांच आउट है यूआई और यूएक्स, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग एंड कोडिंग। Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. So anybody else? Like, yeah, Anshu, please go ahead. Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग अंशु। सर, मैं पूछ रही थी कि जो एआई है ट्रेंडिंग में, वो क्या ह्यूमन मार्केट को सर रिप्लेस कर सकता है क्या? क्योंकि एआई वेरी गुड क्वेश्चन। सो सी, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। मेरा एक बहुत सिंपल सा ओपिनियन है, कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आपके काम करने के तरीके को एनहांस करता है, आपके लिए वो काम करके नहीं दे देगा। मीन्स अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आपको कंटेंट वो इजीली लिख करके दे देगा। विजुअलाइज तो आप ही करेंगे ना कि हाँ ये आपके लायक है वो कंटेंट या नहीं कंटेंट है। यस सर। अगर कोई पर्टिकुलर इमेज एआई बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो जिसकी एक बहुत बड़ा एक चीज को लेकर के एक है कि कैनवा ने बहुत एआई पे काम करके वो अपने आप को बहुत एनहांस कर लिया है। तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर के बीच में ये था, ग्राफिक डिजाइनर के बीच में था कि हमारा जॉब छिन जाएगा एड एजेंसी में, क्योंकि कैनवा के पास अब टूल आ गया कि आप उसमें प्रॉम्प्ट दीजिए 30 डेज पोस्ट फॉर रेस्टोरेंट, तो वो 30 डिफरेंट पोस्ट बना देगा। बट क्या आपके क्लाइंट को वैसे पोस्ट की जरूरत है? वो कैनवा को पता है। वो तो आप जा करके क्लाइंट से डील करते हैं, क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरा तो चिकन लॉलीपॉप बहुत अच्छा है, मेरा वो प्रोडक्ट बहुत हाईलाइट कीजिए। तो क्या कैनवा को पता है? कैनवा को नहीं पता। प्लस उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी आप प्रॉम्प्ट लाख लिख करके दे दीजिए, वो चीज निकल के नहीं आने वाला है। बट यस, दैट कैन बी हेल्पफुल कि आप उसके एलिमेंट्स को यूज कर ले अपने डिजाइन में। सो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा, ना डिजिटल मार्केटर को, ना ग्राफिक डिजाइनर को, किसी को नहीं करेगा। थैंक यू सर। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जब कंप्यूटर आया था, लॉन्च होने वाला था, तो लोग कहते थे कि बहुत सारे लोगों का ना जॉब छीन जाएगा, सारा काम कंप्यूटर कर लेगा। कंप्यूटर चलाने वाला भी इंसान ही है, आज भी जॉब है। हाँ, आउटपुट बढ़ गया है, वर्कफोर्स की कम जरूरत होती है और एनहांसमेंट ज्यादा हो जाता है। आप एक ही साथ 4 डिफरेंट तरह का काम आप कर सकते हैं। So next we have Soumya. Soumya, you can go ahead and ask your question. Hello, sir. Hello, ma'am. हेलो सौम्या। Sir, my question is, where do you see digital marketing in 5 years? 5 years ahead, Yes, sir. very much demanding profession, plus at least आने वाली जनरेशन में बहुत सारे लोग तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या करने का सोच रहे होंगे। मीन्स अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे जगहों पे जरूरत है डिजिटल मार्केटर की। अभी सिर्फ ए लेवल और बी लेवल के सिटीज तक अप्रोच गया है, सी लेवल के सिटीज तक अप्रोच नहीं गया है। तो आने वाले 5 साल में हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट आपके बगल वाला घर में ना एक मार्केटिंग एजेंसी बैठी होगी। Yes, sir. And my second question is, what kind of projects you are most passionate about? What kind of Project. Passionate about? any new project fascinate me a lot. Any new project means मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक आंसर देता हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मीन्स अगर कोई पार्टिकुलरली कोई, जैसे सपोज कि मैं स्कूल की बात की, स्कूल का ठीक है हम कर रहे हैं उसको, बट एक सैचुरेशन पॉइंट आता है एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ डिजाइनर की यार अब हो गया, कुछ और भी तो हम करें, ठीक है। सो हाँ, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है रेस्टोरेंट का। क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारा, आप वहां पे प्रोडक्ट, आप वहां सर्विस, वहां रिव्यू, वहां एंट्रेंस, एम्बियंस, स्कूल का एम्बियंस थोड़ी दिखाएंगे हम बार बार, एम्बियंस वहां चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर ओकेजन्स, थीम्स चेंज होते हैं वहां
वहाँ का, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स रेस्टोरेंट का अपना होता है। कभी उन्होंने ओपन माइक किया, कभी उन्होंने एक फूड फेस्टिवल लगाया, तो उस तरीके का एक मल्टी फैसेटेड जब वो होता है ना काम, तो उसमें बड़ा मजा आता है। सो उस तरह का काम बहुत अच्छा है। Thank you, sir. वेलकम। Okay, so anybody else who would like to ask something? Yeah, I don't think there's anyone else. So I have a personal question, sir. What strategies should a small business adapt to if they are going for a low budget marketing? Low budget marketing for the from the business point of view, you are saying? Yeah, like a very small, like a business who's just starting. वो क्या ऐसी small budget marketing strategies लगा सकते हैं अपने business को और enhance करने? ओके, सो बेसिकली उनको एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, वो हम लेते हैं ईशा का। सी क्या है ना, डिजिटल मार्केटर्स ने मार्केट को बहुत कंफ्यूज कर दिया है और एवरीबॉडी इज इन मनी मेकिंग प्रोसेस, लाइक कि सर आप हमें दीजिए, हम काम कर लेते हैं और उससे ही हो जाता है। तो उससे क्या हुआ है ना कि राइट डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, और इसको ना अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बताने की जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि उस स्मॉल बिजनेस को सबसे पहला प्राइमरली क्या गोल है उसका। अगर उसको उसके पास वॉक इन कमा रहा है, उसको बिजनेस चाहिए, तो आप वॉकिंग ओरिएंटेड गोल के साथ में उसको लेकर अप्रोच लेकर के जाइए। अगर उसको वॉक इन ठीक है, उसको ब्रांड विजिबिलिटी बनानी है, तो ब्रांड विजिबिलिटी के हिसाब से उसको लेकर के जाइए। तो ये तो हो गया कि क्या पर्पस से लेकर के जाना है। नाउ दैट डिपेंड अपॉन कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से उसका बजट क्या है। ठीक है, तो अगर आप ये कहेंगे कि एक बिजनेस के लिए आप कितना बजट आप बोलेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। शायद किसी के लिए 5,000 बहुत ज्यादा हो जाए, किसी के लिए 50,000 भी बहुत कम हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। सो स्मॉल बिजनेस का गोल पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या है, उसके हिसाब से आप उसको अप्रोच करते हैं और उसका सॉल्यूशन उसको आप देते हैं। क्योंकि का बना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, नहीं है। एजेंसीज डेफिनेटली उसको महंगा प्रोजेक्ट करते हैं और महंगा देते हैं, बट यस है कहीं कहीं अब जैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट 4-5 लोगों की जब होती है ना, तो आपका कोई भी चीज महंगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल अकाउंट को अगर आप हैंडल करते हैं, फेसबुक अकाउंट सपोज कीजिए आप हैंडल करते हैं, तो उसके पीछे आपको कंटेंट राइटर की जरूरत होती है, आपको ग्राफिक डिजाइन की जरूरत होती है, आपको सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत होती है, और प्लस एक बिजनेस जो आपका बिजनेस ला रहे हैं उनकी जरूरत होती है। ये तो बेसिकली 4 लोगों का होता है। तो 4 लोगों की सैलरी अगर आप जोड़ेंगे, आप किसी के लिए काम करते हैं, तो ऑफकोर्स हो जाता है। यस, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो बहुत महंगा ही होना चाहिए। तो एक छोटे बिजनेस को हम लोग छोटे अमाउंट में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड लेके चलते हैं, मोबाइल शॉप। ठीक है, किसी ने एक बहुत छोटा सा मोबाइल शॉप स्टार्ट किया, तो उसके लिए सबसे पहले फुटफॉल बनाना होगा। तो व्हाट सजेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो योरसेल्फ ऑन द गूगल माय बिजनेस। आप गूगल माय बिजनेस पे जाइए, वहां पे आप जाकर काम कीजिए, अपने प्रोफाइल बिल्ड कीजिए, या हम करेंगे आपके लिए अगर एजेंसी आप एज एजेंसी हायर करते हैं तो, और हम उनके गूगल पे काम करना चालू करेंगे। तो क्या हुआ, वहां पे उनका बजट कम लगा और वॉक इन अप्रोच वहां से बढ़ जाएगा। तो ये एक छोटे बिजनेस का अप्रोच हुआ। और वही अगर वो चेंज हो जाता है किसी दूसरे तरीके के प्रोफाइल में, तो शायद गूगल माय बिजनेस वहां काम नहीं करके आपको वहां पर लीड्स का जरूरत पड़ेगा। तो उनके लिए लीड्स ऑपरेटेड मोटिव के गोल के हिसाब से आपको उनका अप्रोच लेके आना। We have 2 more questions. Isha, you can go ahead. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Sir, basically my question is like we have been listening about digital marketing a lot, and as a fresh, I want to know कि digital marketing है तो, लेकिन how to start career in it? Like I have zero knowledge about digital marketing, तो मैं शुरू कैसे करूँ? Like I have no knowledge about digital marketing. So यही जानना है, how to start. So मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आप एक बहुत छोटा सा कोर्स कहीं ना कहीं से कीजिए, ऑनलाइन ट्राई कीजिए ऑनलाइन नहीं करने को।
क्यों? ऑनलाइन करने से ना आप जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या सी क्या होता है, आप जब अकेले पढ़ते हैं ऑनलाइन तो आप सिर्फ अपनी नॉलेज के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप 30 लोगों का एक छोटा सा बैच है, अगर आप वहां जाकर पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी 29 लोगों का एक्सपीरियंस भी आप ले रहे हैं, क्योंकि वो 29 लोग अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्लास में कि अच्छा मैंने फलाने फलाने ब्रांड के लिए इस तरह से काम अप्रोच किया, तो उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है। सो माई सजेशन विल बी गो फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कहीं से भी कीजिए, छोटे ड्यूरेशन का 3 महीने का होता है, 6 महीने का भी होता है, और उसके बाद आप एज अ इंटर्न कहीं पे ज्वाइन होइए और वहां पर आप सीखिए, टाइम दीजिए सीखने में, इंटर्नशिप में, क्योंकि आपको रियल एक्सपीरियंस वहीं से आएगा और धीरे धीरे करके आप एज अ डिजिटल मार्केटर आपको स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप सपोज ये 3 महीने में आपने एक पर्टिकुलर कोर्स को किया है, उसके बाद फिर अगले 3 महीने में दूसरा कोर्स कर लीजिए। वो चूंकि वीक डेज में, ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस चल रहे होते हैं, शाम को इवनिंग बैच होता है, मॉर्निंग बैच होता है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जॉब और कोर्स दोनों आप साथ में कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद अ स्मॉल कोर्स, गो फॉर द इंटर्नशिप एंड साइमल्टेनियसली डू डिफरेंट कोर्सेज एज वेल। Thank you, sir. वेलकम ईशा। Now we have Ritu. Ritu, you can go ahead. Ritu? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितु। सर मैं एसईओ के बारे में पूछना चाहती हूँ, कोई भी कंपनी का एसईओ कैसे हेल्प करती है? किसी भी कंपनी का एसईओ कैसे हो सकता है? हाँ, एसईओ कैसे कोई भी कंपनी में हेल्प करती है? अच्छा, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एसईओ से आप क्या समझती हैं? हेलो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एसईओ से आप क्या समझती हैं? रितु, आवाज आ रही है? हेलो Ritu? हेलो। I think she is not able to do it. हाँ, कोई नहीं, मैं उनका आंसर दे देता हूँ। सी एसईओ ना एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की वो बात कर रही है। मींस एसईओ कैन बी डन ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट तरीके से होता है। आप किसी भी तरीके से सर्च इंजन में आ जाते हैं ना, दैट इज द बेसिक गोल ऑफ द एसईओ, और बेसिक काम वो होता है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आने का बहुत तरीका है। आप विकिपीडिया में भी अपने कीवर्ड्स को आप डाल देंगे तो भी उससे एसईओ होता है। सो ये बता पाना, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ एसईओ की बात कर रही है, किस तरह के एसईओ की बात कर रही है, तब तक ये आंसर दे पाना बहुत डिफिकल्ट है। वो वही मैं जानना चाह रहा था कि वो उनका पर्टिकुलर किस सेगमेंट को लेकर के क्वेश्चन। ऐसे मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो वेबसाइट एसईओ जो होता है, वो वेबसाइट एसईओ में कंटेंट डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, और उसके हिसाब से वो एसईओ की रैंक होती है। तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग की बात की जाती है। लेकिन आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि गूगल माई बिजनेस का भी एसईओ होता है। गूगल माई बिजनेस में भी आप कीवर्ड्स डालते हैं जो आपके गूगल सर्च इंजन में सबसे पहले अपने बिजनेस को दिखाता है। सो एसईओ कैन बी डन एनीवेयर। Yeah, we have one more question from Sakshi. So, Sakshi, you can go ahead. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Ma'am, my question is, what are the limitation of digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग का लिमिटेशंस पे भी हम लोग ने पहले डिस्कस किया था। सबसे पहला तो उसका ये है, लिमिटेशन है कि एक्सेप्टेबिलिटी अभी थोड़ी कम है, थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। जो मैंने फादर और सन का बिजनेस का एग्जांपल दिया था, फादर के पास, सन के पास तो एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ ठीक है, ही नो कि हाँ ये ट्रेंड है और इसी पे जाना है, बट फादर को शायद अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो फादर ओन करते हैं, तो उनको कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप कैसे समझाएंगे पापा को कि पापा यही जरूरत है, मतलब मुझे यही कोर्स करना है, जब तक कि वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि हाँ ओके ये करने से ये होता है। हम गूगल में अगर हमको न्यूज पढ़ना है पर्टिकुलर आज का, तो जब सर्च करते हैं तो न्यूज आ जाता है ई पेपर में के फॉर्मेट में। तो यस, दैट इज द डिजिटल मार्केटर जॉब। तो आप वो समझेंगे तभी वो आपको समझा पाएंगे। तो इस वजह से एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम है अभी, और हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा।
दूसरा डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था इज द पेमेंट इशू, जो बहुत बड़ा है। मीन्स आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगी, आप एज एजेंसी जाएंगी मार्केट में, या एज ए डिजिटल मार्केटर फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर भी जाएंगी, आपको पेमेंट को लेकर बहुत इशू है। तो आप इस बात को मान के चलिए, एक्सेप्टेंस लेके चलिए कि यस थोड़ा तो आने वाला है, बट यस आई एम टेलिंग यू अगेन 100% कभी नहीं होता है। मीन्स 100% आपके साथ 100 में से 10-20% ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फेस करने को मिलेगा प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे आप एस्टैब्लिश होते जाएंगे, आप अपने टर्म्स कंडीशन पर काम करने लगते हैं और उसके हिसाब से आप क्लाइंट को ये टर्म कंडीशन देते हैं कि हमारा पेमेंट टर्म कंडीशन ऐसा रहेगा और इस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट नहीं करेंगे, हम काम रोक देंगे, आप आगे पेमेंट रिलीज करेंगे, फिर हम काम करेंगे। तो फॉर यू ऑल हु आर बिगिनर्स, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत डिवास्टेटेड फील होता है जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वो पेमेंट रिलीज नहीं होता है। तो कई बार लगता है कि नहीं ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गया, बट ठीक है, होता है। उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है, कई बार उनको पहले बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बना के जा चुके होते हैं, तो इसलिए आप एक होते हैं कि आपको भी उसी नजर से देखा जाएगा। आपने अच्छा काम कर दिया, उसके बाद आपको कोई फिर यू विल नीड नॉट टू लुक बैक, और आप बहुत अच्छा कर जाइएगा। So, do we have any more questions? किसी और को कुछ और पूछना हो? So I guess we have completed the Q&A. Yeah. Yes. So, nobody else? So, that ends our session. Thank you so much, sir, for your time and such valuable insights. So, before we wrap up, some final words जो आप बोलना चाहोगे for aspiring students or aspiring digital marketers? See, I would like to tell all of you, it is one of the most demanding and responsible also, because आने वाले समय में डिजिटल ही सब कुछ होने वाला है, हो रहा है और होने वाला भी है। आप अगर एक लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे ना, तो शायद उसके लिए वो आपको रेवोल्यूशन भी लेकर के आ जाए। तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। मीन्स बहुत सारे ब्रांड्स के लिए जब हम लोग काम करते हैं ना, तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि वो लैंग्वेज जो यूज हो रहा है वो बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज हो, किसी को चुभ नहीं जाए, किसी को किसी तरीके से हर्ट नहीं कर जाए, क्योंकि आप एक इंसान को भी हर्ट करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के लिए एक लॉस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब में भी जा रहे हैं और बहुत फैंटास्टिक जॉब में जा रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं तो आंख बंद करके जाइए, बहुत ह्यूज स्कोप है और चैलेंजेस हर एक फील्ड में आता है, इसमें भी चैलेंजेस है, बट यस जिस दिन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे आप, उस दिन यू विल बी द विनर। That's like so Spider-Man का dialogue हो गया, with great responsibilities come with great powers come great responsibilities. Very true, very true. So I guess you guys can also be Spider-Man, जिसको भी superhero बनना हो. This is a great field to begin your superhero journey. So once again, thank you so much, sir, and thank you to all the listeners who joined in. And you guys can follow sir on LinkedIn. Or so thank you so much, sir. Thank you दिव्या, thanks a lot, and बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके बात करके, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग इस फील्ड में सोच रहे हैं और करने की एकदम। और बाकी पूरी टीम, दिव्या आपकी टीम और मेरी तरफ से जो सपोर्ट होगा वो मैं दे दूंगा। किसी को इंटर्नशिप चाहिए होगा तो they can come over here at my agency और आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। Yes. And you guys can follow sir on LinkedIn, of course, and stay connected with sir, stay connected with the trends. So, all right. So, thank you so much, sir, with that.